Hello students. So come to state board reading of molecular basis of inheritance. Because this lesson is in 12th, board की preparation हमको करनी है. And one more thing, content wise it is very simple, very nice. That's lesson number 4, molecular basis of inheritance. Can you recall what is nucleic acid? Nucleic acid is the acidic chemical present in nucleus. They are of two types. बोलो DNA, RNA. What are the types of nucleic acid? DNA, RNA, long form. Deoxyribose nucleic acid, ribonucleic acid, classified on the basis of sugar present in it, as well as the nitrogen basis. What are the functions of nucleic acid? DNA is the genetic material, transferred over generation, regulating heritable characters. RNA are its assistants. What is the difference between DNA in prokaryotes and eukaryotes? DNA of prokaryotes is circular double-stranded and DNA of eukaryotes is linear double-stranded. So this is all we have seen in lesson cell as well as cell division. So ये chapter को हमेशा हमको सेल और सेल डिवीजन से, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से, डीएनए का पैकेजिंग, क्रोमोसोम, इससे रिलेट करना है. Now come to 4.1, the discovery of DNA. The modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid to the development of double helix model. DNA genetic material है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ से modern understanding of DNA has evolved from discovery of nucleic acid to development of double helix. वहाँ से genetic material के बारे में modernization अलग-अलग चीजें देखना शुरू हो गई. In 1869, Friedrich Miescher began working with white blood cells. चलो, साइंटिस्ट के नाम अगर आपको याद है तो हमने साइंटिस्ट के नाम, द मटेरियल, राइट, साइंटिस्ट के नाम, वेट अ सेकंड, मटेरियल ही यूज्ड एंड द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट, कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इतनी चीजें हमने देखी थी. तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा दैट विल बी द साइंटिस्ट नेम फ्रेडरिक मिस्चर, राइट, एंड द मटेरियल यूज्ड विल बी pus cells, right. Then the conclusion of the experiment, फ्रेडरिक मिस्चर के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं. He collected lot of pus from baggages at the local hospital. He used a salt solution to wash the pus of the baggages. When he added a weak alkaline solution to the cell sliced and nuclei precipitate out of the solution. Okay, अब देखो what material did he used, right? तो यहाँ पे हम देखेंगे weak alkaline solution, then the pus cells, weak alkaline solutions, then the pus cells, right, and the nuclei, right. Okay, so see, nuclei precipitate out of the solution. From the cell nuclei, he isolated a unique chemical substance to which he called nuclein. Okay, so इसके contribution में और एक शब्द आएगा, फ्रेडरिक फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड न्यूक्लियन. चलो सब लोग क्लास वर्क निकालो. वो चार्ट हम लोग अपडेट कर रहे हैं, राइट. वो चार्ट अपडेट करते वक्त सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आएगा फ्रेडरिक मिस्चर, राइट. देन कंट्री का नाम कहीं दिया नहीं है, ईयर दिया है, नाम के नीचे लिख लो 1869. लिख के रखने में क्या दिक्कत है, धीरे धीरे याद रहेगा तो अच्छी बात है. कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त ऐसी चीजें क्लिक भी होती है. So just write down in 1869 studied pus cell alkaline solution and concluded that the nucleus contains a chemical called nuclein, right. Nuclein word was first time suggested by Friedrich Miescher, बराबर. So देखो, from the nuclei he isolated unique chemical substance to which
he called nuclein. Okay, so DNA, RNA, nucleic acid ये शब्द तब नहीं था, nuclein था. Chemically, a nuclein has high phosphorus content. देखो यहाँ पे अब वो केमिकल जिसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं उसके पास कौन से केमिकल है, उसके पास फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा है. मोर ओवर इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, हेंस इट इज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड. उसके पास फॉस्फोरिक एसिड है इसलिए डीएनए एसिडिक है. सो यू मे गेट अ गिव रीजन व्हाई डीएनए इज एसिडिक, बिकॉज इट इज कंटेनिंग एसिडिक नेचर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. Right? Why it is negatively charged? Again, because of phosphoric acid, it is negatively charged. So ये give reason में आएगा. Right? So next one, in early 90s, we know that Michter's nuclein was a mix of protein and nucleic acid. Right? फ्रेडरिक मिक्सचर ने जिसको न्यूक्लियन शब्द बोला था ये केमिकली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का है. चलो याद करो, हमने डीएनए का पैकेजिंग सीखा था. डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम. हमने क्रोमोसोम के केमिकल्स सीखे थे. क्रोमोसोम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन. राइट? सो दीज आर ऑल द केमिकल्स. बराबर. सो न्यूक्लियन में ये सब केमिकल्स है. ओके, सो दिस फ्रेडरिक मिक्सचर केस में मेन केमिकल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है. दैट्स व्हाई साइंटिस्ट वे आर हैविंग कंफ्यूजन कि जेनेटिक मटेरियल ये प्रोटीन है कि डीएनए आरएनए है. इसमें कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि ये केमिकल क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा होते हैं. राइट? बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन. तो क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन याद में रखो. राइट? सो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. 4.2. The genetic material is DNA. By early 90s, genetics knew that genes control the inheritance of trait. Gene is a segment of DNA which is regulating a heritable character. Heritable characters के सब character को हम trait बोलते हैं. Right? So height is a character, tallness and dwarfness are the traits. Height is a character, उसका सब character मतलब trait क्या है? Tall and dwarf. जैसे ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी आर द डिफरेंट ट्रेट्स, सब कैरेक्टर्स. Genetics knew that gene control the inheritance of trait, that genes are located on chromosomes and that are chemically chromosomes are mainly composed of DNA and protein. Initially, most genetics thought that proteins are large, complex molecules and store information needed to govern cell metabolism. Initially, scientists को लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. Hence, it was assumed that proteins caused a variation observed within the species. Right? So हमने बोला था कि जेनेटिक मटेरियल ने विविधता, वेरिएशन एज वेल एज डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करनी है. ओके, सो जो केमिकल विविधता एक्सप्लेन करता है वो खुद विविधता दिखाने वाला चाहिए. सो साइंटिस्ट वर बिलीविंग दैट प्रोटीन शुड बी द जेनेटिक मटेरियल. On the other hand, DNA thought to be small, simple molecule whose composition varied little among the species. DNA के पास तीन ही केमिकल है, right? नाइट्रोजन बेस, शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फेट. ये तीन केमिकल में विविधता आगे कितनी आएगी, बराबर. लेकिन प्रोटीन लाखों प्रकार के हैं. प्रोटीन के अमाइनो एसिड 21 टाइप्स के हैं, right? So proteins are supposed to be more diverse and DNA comparatively are simple. So instead of DNA, scientists were insisting. Okay, Griffith का Agree-Bacillard Macatica experiment deny क्यों हुआ? Because DNA is a simple molecule and those composition varied little among the species. अलग-अलग species में DNA के composition में कुछ बदलाव नहीं है, बस DNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बदलाव है. वो पॉइंट साइंटिस्ट को नोट नहीं हुआ था. Over the time, these ideas about DNA were shown to be wrong. जैसे जैसे आगे गए तो ये साइंटिस्टों को पता चलने लगा. In fact, DNA molecules are large and vary tremendously within and among the species. Just because of sequence of nucleotide differs within the species, मतलब अलग-अलग होमो सैपियन के पास DNA का वेरिएशन है.
दो डिफरेंट स्पीसीज में भी जेनेटिक मटेरियल में विविधता है, राइट? So variations in the DNA molecule are different than the variation in shape, electrical charges and function shown by proteins. So it is not surprising that most researchers initially favored protein as a genetic material. Over a period of roughly 25 years, it is 1928 to 1952, genetics become convinced that DNA and not protein was a genetic material. Let us study three important contributions that help cause the shift of opinion. 3 साइंटिस्ट के मेन एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करना डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होना एक्सेप्ट कर लिया गया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन 1928 ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर फ्रेडरिक ग्रिफिथ, चलो निकालो क्लास वर्क, साइंटिस्ट के नाम, उसका चार्ट, राइट? चलो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये सब यहाँ तक के पॉइंट चार्ट में लिखने हैं। साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ, कंट्री ब्रिटेन, हम कैसे बोलेंगे हमेशा? ब्रिटिश ग्रिफिथ, right? Living material used, Streptococcus pneumonia, mice, right? Okay. Streptococcus pneumonia की प्रॉपर्टी लिखेंगे, it is a pathogen, it is a bacteria. कोकस मतलब इसका शेप कोकस है, okay? ये पैथोजेनिक है। निमोनिया नाम का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। लिखिए सब बातें। चलो कंप्लीटेड। ये पॉइंट आज ही मेरे साथ ही लिखने हैं, डोंट पोस्ट। पॉज करो वीडियो, क्लास वर्क लेके आओ, अभी लिखने हैं बेटा। लिखते लिखते काम करोगे, ओके, तंग नहीं हो जाओगे और क्रिएटिव काम होने के बाद नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। नहीं तो एवरी टाइम यू गो ऑन पोस्टपोनिंग। So how many of you are postponing? Don't do that, please. Just pause my word. Go and read the book. Yeah, thanks a lot. Sure. There are 2 strains: virulent, smooth, pathogenic, and encapsulated S-type. Second, non-virulent, rough, non-pathogenic, and non-capsulated. देखो हमने सिंपल जुगाड़ू काम किया था। S-type says yes for virulence. It is pathogenic, right? ये disease cause करने को yes बोलता है, कैप्सूल बनाने को yes बोलता है, and actually S means smooth, right? ये non-virulent R type सबको नहीं बोलता है। There are 2 strain मतलब subspecies. Griffith conducted 4 experiments on these bacteria. First, when he injected bacteria of a strain R to mice, the mice survived because it did not develop pneumonia. आर बाबा बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करना आता ही नहीं था, तो आर बैक्टीरिया माइस के बॉडी में जाएगा, वहां पे खुद को ग्रो करेगा। ओके, अब बाबा को ही नहीं आता तो क्या बच्चों को खा पाएगा, राइट? तो सब मिला के डिजीज नहीं तैयार कर सकते। सो माइस को डिजीज नहीं हुआ, माइस इज अलाइव, राइट? सेकंड, व्हेन ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेन एस स्ट्रेन के बाबा को डिजीज कॉज करना आता था, मतलब उसके पास ऐसा केमिकल था जो डिजीज कॉज कर सकता है, राइट? द माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइड। तो ये जिसके पास ये केमिकल है बाबा बैक्टीरिया के पास जो डिजीज कॉज कर सकता है, उसने बेबी बैक्टीरिया बनाया। बेबी बैक्टीरिया के पास वो केमिकल रेप्लिकेट होके गया और पूरे बाबा बच्चों ने मिला के माइस को डिजीज कॉज करके पहुंचा दिया, राइट? मरवा दिया। सो व्हाट इज दिस बॉटम लाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट? द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, जोक्स अपार्ट, राइट? Ability to cause disease is regulated by a chemical. That chemical can replicate. It transfers over generation. That's why the character transfers over generation. Right? See. In third experiment, he injected hit-killed estrin. Estrin के बाबा को मार दिया तो वो reproduction नहीं करेगा, no disease. In fourth experiment, he mixed hit-killed S bacteria with live bacteria of R strain and injected the mice.
the mice died and Griffith recovered large number of live S bacteria from blood of dead mice. This is really a miracle which was noted by Griffith. R टाइप लिविंग बैक्टीरिया ने डेड एस टाइप से वो केमिकल ले लिया. ओके, वो केमिकल की वजह से R टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया. अब आर एस टाइप में जो कन्वर्ट हुआ वो लिविंग बैक्टीरिया था, उसने रिप्रोडक्शन किया, उसके बच्चे भी एस टाइप के हो गए. अब उनको डिजीज कॉज करना आता था, ये सब बाबा बच्चों ने फिर से माइस को डिजीज किया, राइट, एंड माइस मर गया. और मरे वाले माइस के ब्लड में जिंदा एस टाइप के बैक्टीरिया मिले. देखो, आपने एक्चुअली डेड हिट किल्ड एस टाइप डाले थे, अब जिंदा कैसे मिले? बिकॉज आर टाइप ने खुद को परमानेंटली मॉडिफाई कर लिया, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. बैक्टीरिया ने मीडिया से खुद वो जेनेटिक मटेरियल उठा लिया, खुद में बदलाव लाया, एंड इट इज परमानेंटली चेंज. That process is called transformation. That's why the dead mice blood contains living S type of bacteria. In these 4 experiments, something has caused harmless R bacterium to change into deadly S strain bacterium. Griffith showed that the change was genetic. Obviously, that's why it is heritable. He suggested that genetic material from Hitkin strain S bacterium had somehow changed the living R bacteria into strain S bacteria. Griffith concluded that the R strain bacteria must have taken up to what he called a transforming principle. Okay, जो केमिकल डेड एस टाइप से लिविंग आर टाइप में गया और आर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो केमिकल को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट. ओके, सी transforming principle from the hit-killed S bacterium which allowed R bacteria to get transformed to smooth-coated bacterium and become virulent. देखो, जो हमने फॉर्मूला में लिखा था, राइट, वो इन्होंने डायग्राम में बताया है. सी, R strain लिविंग बैक्टीरिया माइस में डाला, राइट, माइस इज अलाइव. कैप्सुलेटेड फॉर्म एस टाइप माइस में डाला, माइस उल्टा मतलब पहुंच गए, डेड, राइट. अब ये what is this? These are the hit killed smooth S strain. Hit killed है इसलिए लाल बताया, माइस के बॉडी में डाले, माइस इज अलाइव बिकॉज बाबा बैक्टीरिया कैन नॉट रिप्रोड्यूस. अब देखो मिक्सचर, these are living R type, dead S type, मिक्सचर प्रेजेंट हियर. ओके, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, माइस मर गया और माइस के ब्लड में से लिविंग S type मिले. क्लियर, राइट? सो सी, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which we have studied. Okay, then Avery, MacLeod, McCarty. यहाँ पे ग्रिफिथ के लिए हमने क्या कंक्लूड किया? ग्रिफिथ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. चार्ट में लिख रहे हो ना, ग्रिफिथ उसने रॉ मटेरियल यूज किया, ब्रिटिश ग्रिफिथ जो रॉ मटेरियल यूज किया, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? ही सजेस्टेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शुड बी डीएनए. ही सजेस्टेड, इट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट में कहीं पे भी हमने डीएनए शब्द यूज नहीं किया. वी आर यूजिंग द वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. Okay, so come to the next point. Avery, McCarty and MacLeod experiment. In 1944, चलो चार्ट, साइंटिस्ट के नाम, लिख लिए. ईयर 1944. ओके, यूएस माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कंट्री का नाम, आ गया. हाँ, सो Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod and Macklin McCarty, all the Rochester University. Okay, चलो ये भी लिख लेंगे, यूएस रॉकेफेलर यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क ध्यान में रखने में आसान है, ये यूनिवर्सिटी का नाम. अगर नसीब फट्टा है ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो बेटा चार्ट में लिख के रखो, चार्ट में लिख के रखो. तो जैसे जैसे रिवाइज करोगे अपने आप याद रह जाएगा. हमको कोई पर्पसफुली काम नहीं करना है, आज पर्पसफुली इतना ही करना है. चार्ट में या रिटर्न फर्स्ट एविडेंस टू प्रूव दैट the DNA is a genetic material transforming principle through the experiment.
They purify DNA, RNA, protein, enzyme and other materials from cell-free extract of S cell. चलो निकालो क्लास वर्क। क्लास वर्क में देखो मैंने क्लियर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था। इस टाइप का बैक्टीरिया लिया, उसका सेल का लिसिस किया, अलग अलग केमिकल्स बनवाए, राइट। अलग अलग केमिकल जो हमने मिलवाए, राइट, वो केमिकल अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किए। वो जो केमिकल्स है वो हमने बैक्टीरिया के साथ इंट्रोड्यूस किए। दो एक्सपेरिमेंट किए ना हमने, एक में एंजाइम डाला, दूसरे में हमने वो केमिकल जो आइसोलेट किए थे वो बैक्टीरिया को दिए। जो केमिकल की वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। चलो सब लोगों ने क्लास वर्क का फ्लो चार्ट डायग्राम देख ली। दो डायग्राम दिए थे मैंने एवरी मैथ्यू और मैकार्टी के। पहले में सिर्फ केमिकल आइसोलेट किए हैं, टेस्ट ट्यूब में डाले हैं और टेस्ट ट्यूब में आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, बराबर। जो टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला, ओके, द टेस्ट ट्यूब इन व्हिच यू ऐड डीएनए, दैट बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म टू एस टाइप, राइट। अच्छा, सी नाउ where we are here. Only DNA was able to transform harmless strain R into deadly S. जो टेस्ट ट्यूब में आपने आइसोलेटेड केमिकल डीएनए डाला था, सिर्फ वो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए। They also discovered that proteins, digesting enzyme, protease, RNA digesting enzyme, RNAs, did not affect transformation. दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। बैक्टीरिया से आपने अलग अलग केमिकल आइसोलेट किए, ओके, समझ लो मिक्सचर ऑफ केमिकल आइसोलेट किए। वो मिक्सचर में आपने एक बार प्रोटीएज डाला, फिर आरएनएस डाला, फिर लाइपेज डाला, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा। जब आपने डीएनए डाला, मतलब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। So the transforming substance was neither a protein nor RNA. DNA digested with DNAs did inhibit the transformation, suggesting that DNA caused the transformation. These experiments proved that the transforming principle is DNA, but all biologists were not convinced. Right, so same experiment, देखो यहाँ पे ये है rough non-virulent, राइट, प्लस ये है अलग अलग केमिकल्स, राइट। ये केमिकल को प्रोटीएज से हमने ट्रीट किया, मतलब इसमें का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, बराबर। और बचे वाले केमिकल आर टाइप को दे दिए, एंड आर टाइप बचे वाले केमिकल माइस के पास, बचे वाले केमिकल प्लस आर टाइप माइस के बॉडी में गए तो माइस मर गए, राइट। जब इसमें डीएनए डाला, मतलब ये केमिकल में से डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, बचे वाले केमिकल आर टाइप को दिए, तो माइस को डिजीज नहीं हुआ। तो सिंपल, जब डीएनए एक्टिव है डिजीज होता है, जब डीएनए एक्टिव नहीं है तो डिजीज नहीं होता है। मतलब डिजीज कॉज करने वाला जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। एबिलिटी टू कॉज डिजीज इज द जेनेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, and the transforming principle is proved to be DNA because of this experiment. Right, now scientists proved, but people are not ready to accept it. Okay. Finally, Alfred Hershey and Martha Chess, 1952. Sure, हमारा चार्ट, साइंटिस्ट के नाम, राइट, लिख लिया। साइंटिस्ट के नाम क्या लिखोगे? अल्फ्रेड हर्शी, मार्था चेस। मटेरियल यूज्ड बैक्टीरियोफाज एंड ई कोलाई, राइट। लिविंग एजेंट, नॉन लिविंग केमिकल यूज, देखो यहाँ पे लिख रहा है P32 S35, लिख लो एट ए टाइम, हम जानते हैं ना। चलो, हर्शी चेस वर्क with viruses that infect bacteria, that is bacteriophages, which are composed of DNA and protein. They use radioactive phosphorus, non-living chemicals used. They use radioactive phosphorus
लिख लिया, राइट, एंड रेडियोएक्टिव सल्फर, which other chemical is used by them is radioactive sulfur. ठीक है, चलो अब इनकी कंट्रीब्यूटरी नहीं दी है, इट इज गुड पार्ट. Let us proceed. They grew some viruses on media that contain radioactive phosphorus and some other on media containing radioactive sulfur. अब यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किया था कि वायरस टिश्यू कल्चर नहीं होते, तो मीडिया में S35 एक पेट्री प्लेट पे, दूसरे पेट्री प्लेट में P32, उसके ऊपर होस्ट और होस्ट के ऊपर वायरस ग्रो करेंगे. तो ऑब्वियसली होस्ट मीडिया से केमिकल लेगा और वही केमिकल यूज करके वायरस ग्रो होगा होस्ट के अंदर. Because viruses are all cellular, they don't have cellular organization, so they can replicate only in presence of host within the host cell. Right? Viruses grow in presence of radioactive phosphorus, contain radioactive DNA, labeled DNA, but not radioactive protein. जिनको पेट्री प्लेट P32 वाला पेट्री प्लेट पे P32 डाला, उसके ऊपर वायरस, तो ऑब्वियसली उनके डीएनए में P32 गया, क्योंकि सल्फर में प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं होता, बराबर, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन्स डू नॉट. सिमिलरली वायरसेस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंटेड रेडियोएक्टिव प्रोटीन. राइट, सो वायरस ने क्या किया, वायरस ने जो S35 डाला था सल्फर, बराबर, तो ये S35 डालने के बाद उसके प्रोटीन में वो S35 गया, लेकिन डीएनए में नहीं गया. व्हाई? बिकॉज सल्फर इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बराबर. सिमिलरली viruses grow on radioactive sulfur contained radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. Radioactive phages were allowed to infect E. coli bacteria grown on the media containing normal P and S. Then, as the infection proceeded, the viral coats were removed with the help of centrifugation. Bacteria were infected by viruses with the radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passes from the virus to bacteria. The virus which contains radioactive DNA insert its genetic material into the bacteria. Within the bacteria, you get the radioactive chemical, right? So the chemical which is entering in a cell is radioactive, is acting as a genetic material. This indicates that protein from the virus did not enter the bacteria. प्रोटीन जिसके पास रेडियोएक्टिव S35 था, वो बैक्टीरिया के अंदर था ही नहीं, वो सुपरनेंट मीडिया में था. तो जो केमिकल सेल के बाहर रहता है वो सेल के अंदर नहीं गया, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जेनेटिक चेंजेस नहीं आएंगे. केमिकल गया ही नहीं है अंदर, तो केमिकल चेंजेस कैसे कॉज करेगा, राइट? सो दिस इंडिकेट्स दैट protein from the virus did not enter the bacteria. DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to bacteria. In other words, sometime after infection, radioactivity for P and S was tested. Only radioactive P was found inside the bacterial cell, indicating that DNA is the genetic material. चलो ये डायग्राम NCERT में सेम है, देखो ये बैक्टीरियोफाज, ये डायग्राम हमने 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस का बोला था. ये शेप को हम बोलते हैं टैडपोल. इसका ये हेड के कवरिंग को बोलते हैं कैप्सिड, राइट? इट्स कॉलर, ये इसकी बेसल प्लेट और ये है इसके फाइब्रिल्स, बराबर. अब ये बैक्टीरियोफाज के अंदर का ब्लैक स्ट्रक्चर जो है वो है जेनेटिक मटेरियल, राइट? वो है केमिकल डीएनए, और बाहर का वो कैप्सिड जो है वो है प्रोटीन, बराबर. सेम स्ट्रक्चर हियर. ओके, अब देखो यहाँ पे लेबल दिए हैं, दैट इज नो सल्फर डिटेक्टेड इन अ सेल, बराबर. तो व्हाट इज डन, ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, ये बैक्टीरियोफाज के कैप्सिड में प्रोटीन में सल्फर है. सो ये सल्फर वाला कैप्सिड, राइट, ये देखो ये सेल के बाहर ही रहा है और इसका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर गया, राइट. तो ये फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप को बोलेंगे ब्लीडिंग, थर्ड स्टेप को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन. तो बैक्टीरियोफाज ने वायरस को इन्फेक्ट किया
अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डाल के ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, हैंड ब्लेंडर शब्द यूज है, पता है, मिक्सिंग किया, जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर गया, लेकिन रेडियो एक्टिव केमिकल कैप्सिड में से अवेलेबल हुआ, राइट, सो आइसोलेट हुआ, सो सल्फर डिटेक्टेड, नो सल्फर डिटेक्टेड इन अ सेल, सो सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेंट, देखो ये मीडिया में जो कैप्सिड है वहां पे मिला। Okay, so simple concept, the chemical which is present within the cell will be genetic material. Sulfur containing chemical is not present in it, so sulfur containing protein cannot be the genetic material. ये उल्टा एक्सपेरिमेंट है। बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर P35 है, वो इन्फेक्शन से सेल के अंदर गया, जेनेटिक मटेरियल ब्लेंड हुआ और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल के अंदर हमको P35 मिला, P35 मिला, ओके, और बाहर सुपरनेंट में कोई केमिकल नहीं है। ओके, सो Hershey-Chase experiment ultimately concluded that DNA is the genetic material. Do you know multiple forms of DNA and their differences? Right? Multiple forms of DNA are A, B, C, D and Z. And their properties, आपने इतना ही ध्यान में रखना है, B type of DNA has rung 10 in one pitch and its diameter is 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक पिच का लेंथ उसका 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है, एक पिच, एक लूप, राइट, इतना आप ध्यान में रखेंगे, वो भी टाइप का है। बाकी के हम रिवीजन में अलग अलग प्रकार थोड़े से सीखेंगे। राइट नाउ नॉट नीडेड, बी टाइप इज मोस्ट कॉमन। सिग्निफिकेंसेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, राइट, उनका लाइक स्टेबिलिटी एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स विल मैटर। चलो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, खुद का प्रोटेक्ट करना चाहिए, अननेसेसरी म्यूटेशन नहीं होने चाहिए, इट हैज टू बी स्टेबल केमिकल, सो इट undergo the process of packaging. Length of DNA double helix molecule in a typical mammalian cell is approximately 2.2 meters. अब ये जो चीजें है बेटा, ये आप बेसिकली, राइट, ये आप बेसिकली एनसीईआरटी में ही जो नंबर दिया है उसको फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे नेट में कौन से नंबर को आंसर करेक्ट मार्क किया जाएगा, सो दैट विल बी ऑब्वियसली द वन व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी. दिस कैन बी वर्कड आउट सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर. याद है हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, सब लोगों को फॉर्मूला याद है? ओके, सी हमने फॉर्मूला क्या बोला था, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, number of base pair, right, multiplied by 3.4. Why it is so? Between two successive base pair that is rung, the distance is 3.4. बराबर? तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया था हमारे फॉर्मूला के सेक्शन में, राइट. चलो नेक्स्ट वन, approximate size of typical nucleus. Important point. Approximate size of typical nucleus is 10 to the power minus 6 micron. यूनिट ध्यान में रखेंगे बेटा, अगर मतलब 10 to the power minus 5 कर लिया मैंने तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है, whatever. ठीक है, तो यूनिट पे ध्यान देंगे. How long DNA molecule can be there? Can be accommodated in such small nucleus. It is therefore must be condensed, coiled and supercoiled to fit inside such small nucleus. छोटी जगह में DNA ठूस-ठूस के भरा है. Packaging in prokaryote. In prokaryotes like E. coli is a type of bacteria. Prokaryote present in Monera, it is a eubacteria. Approximately 1.1 mm if cut and stretched out. Nucleoid is to be fitted on packaged into a cell which is hardly 2 to 3 mu long. Hence, the negatively charged DNA becomes circular, reducing the size to 350 mu micron in diameter. अब ये सब नंबर हमको देखने पड़ेंगे, सब नंबर, एवरीथिंग हमको रट्टा मारने हैं. और मैं बार बार बोलूंगी कि ये नंबर हमको
एनसीईआरटी में के ही देखने हैं। वन मोर थिंग, जो नंबर एनसीईआरटी वालों ने नहीं दिया वो स्टेट बोर्ड में से फॉलो करेंगे। राइट, चलो बच्चा पार्टी सब लोगों ने ये कर लिया है। ये नंबर हाईलाइट कर लो, ध्यान में रखो। ठीक है, चलो। फॉर्मेशन ऑफ लूप इज असिस्टेड बाय आरएनए कनेक्टर्स। जब डीएनए लूप बनाता है, कॉइल करता है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए आरएनए कनेक्टर्स होते हैं। ईच डोमेन इज फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड, देयरफॉर रिड्यूसिंग द साइज डाउन टू 2 म्यू इन डायमीटर। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक डीएनए का पैकेजिंग, प्रोकैरियोटिक डीएनए का पैकेजिंग ये इस प्रकार से रहेगा। हमने सिंपल पहले देखा था, ये डीएस सर्कुलर डीएनए है, ये इसका एक सिंगल स्ट्रैंड, बराबर, और इसके ऊपर है ये इसका कॉइल्ड सेकंड स्ट्रैंड। दिस इज डीएस सर्कुलर डीएनए, राइट। अब इसको मैं सिंपल समझ लो ऐसे ड्रॉ करती हूँ। ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, बराबर। ओके, अब ये डीएनए खुद को ऐसे लूप्स में कॉइल करेगा। ये दिस इज वन लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, राइट। सो द डीएनए इज लूप्ड। ये डबल स्ट्रैंडेड है, हाँ, सब लोग ध्यान में रखो, ये ऐसे डबल स्ट्रैंडेड लूप रहेगा, बराबर। अब ये लूप में ये जो इसके पेटल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर के पेटल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, राइट। सो इसको हम जब कनेक्ट करेंगे, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कनेक्टर यूज करेंगे, कनेक्टर यूज करेंगे, और ये कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर जो है ये यहाँ पे रहेंगे। सो दीज कनेक्टर्स आर आरएनए। सो ब्लू डीएनए है, लूप्ड डीएनए है, और ये जो मैं रेड ड्रॉ कर रही हूँ ये कनेक्टर्स है। सो प्रोकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड लाइक दिस। ओके, चलो, सो सी आई एम रीडिंग अगेन। Formation of loop is assisted by RNA connectors. Each domain is further coiled and supercoiled. अब ये जो पार्ट है ये फिर से coil supercoil करेगा, thereby reducing the size to 2 mu in diameter. This coiling packaging is assisted by positively charged histone-like HU, histone-like DNA binding protein. आप जानते हो प्रोकैरियोट के पास ट्रू हिस्टोन नहीं होता, so it is non-histone protein. This and enzyme like DNA gyrase and DNA topoisomerase 1 for maintaining proper coiled state. चलो, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको मैंने शब्द टोपोआइसोमरेज सिखाया था, राइट। सो टोपोआइसोमरेज और गायरेज आप सिनोनिमसली पकड़ सकते हो। प्रोकैरियोट में उसको गायरेज बोलते हैं। रादर ये ग्रुप है के एंजाइम्स का, उसका एक एग्जांपल है टोपोआइसोमरेज। ओके, सिंपल भाषा में टोपोआइसोमरेज विल यूज द वर्ड पर्टिकुलरली इन यूकैरियोट, गायरेज विल यूज इट इन प्रोकैरियोट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम, सेम थिंग। सी डीएस सर्कुलर डीएनए, ये लूप हो गया है, इसके आरएनए कनेक्टर्स, बराबर, राइट। फिर से ये लूप बना रहा है एंड ईच लूप इज अल्टीमेटली सुपर कॉइल्ड। ओके, एंड दिस वन इज रेप्लिकेशन के टाइम ये निकिंग करेगा। निकिंग इज ब्रेकिंग, राइट। एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करता है ना, तो हेलिकली कॉइल्ड डीएनए सर अनवाइंड बोला था, बराबर। सो दैट कटिंग इज कॉल्ड निकिंग, राइट। सो निक्ड डीएनए, निकिंग हो गया तो यहाँ पे देखो सुपर कॉइल खोलना शुरू हो गया, राइट। ओके, एंड देन पार्शियल डीएनए डाइजेशन, पार्शियल आरएनए डाइजेशन, मतलब पार्शियली फिर ये प्रोसेस में कंडेंसेशन कॉइलिंग में ये केमिकल डाइजेस्ट हो जाएंगे। ओके, और हमको कॉइल्ड डीएनए मिलेगा। ओके, सो सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम, बराबर, पैकेजिंग हो रहा है फोल्डेड क्रोमोसोम, सुपर कॉइल, राइट, एंड अल्टीमेटली दिस विल बी क्लीव्ड, तो ओपन रहेगा, राइट। सो दैट विल बी आरएनए क्लीव्ड हो गया। आरएनए मतलब ये कनेक्टर अगर क्लीव हो गए तो ये लूप खुलेगा, और डीएनए का निकिंग किया तो हेलिकली कॉइल स्ट्रक्चर सेपरेट होगा।
Next one, packaging in eukaryotes. Eukaryotes show well-organized nucleus containing nuclear membrane, nucleolus, and thread-like material in the form of chromosome. In the chromosome, DNA is associated with histone and non-histone protein, as was reported by R. Korenberg, scientist का नाम, right? So DNA associated with histone, non-histone forms chromosome was first time reported by Korenberg. लिख लिया हमारे चार्ट में, right? The organization of DNA is much more complex in eukaryote, depending upon the abundance of amino acid residue, which charge side chains. A protein acquires its changes. Histone are the protein that are rich in lysine and arginine residues. Both these amino acid residues are basic amino acid and carry positive charges with them. ठीक है, देखो ये मैंने बोला था आपको, स्टेट बोर्ड में डायग्राम बहुत अच्छी दी है, राइट? सो देखो ये ऊपर के 4 बॉल, 4 प्रकार के हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4, सेम 4 प्रकार के बॉल हियर. सो व्हाट वी सेड, octamer has 8 types, octamer has 8 histone, 4 types, 2 each. बराबर? अब देखो ये जो डीएनए है ये सामने से गया, फिर पीछे से गया, तो यहाँ पे एक टर्न कंप्लीट हो गया, फिर सामने से गया, 1.5 टर्न कंप्लीट हुआ, फिर पीछे से गया और यहाँ से छूट गया, 2 टर्न कंप्लीट नहीं हुए, रिमेंबर. सो यहाँ से छूटा है. ओके, सो इफ ये डायग्राम आपको कंफ्यूज करती है, ये डायग्राम आपको कंफ्यूज करती है, तो हम बोलेंगे कि ये ऐसे इधर पीछे से जा रहा है, ये डीएनए पीछे से जा रहा है और ये यहाँ से छूट गया और इधर मिला, राइट? ओके, सो यहाँ से यहाँ तक 1 टर्न, यहाँ से यहाँ तक 1.5 और ये 1/3 यहाँ से ये छूट गया. ओके, सो ये जो कॉइल्ड डीएनए है, this one is called core DNA. This one is called core DNA. बराबर? Then हमने और क्या बोला था, ये जो आगे निकल चुका है डीएनए, आगे निकल चुका है, दिस इज लिंकर डीएनए. बराबर? सो देखो ये साइड का लिंकर डीएनए है और ये यहां से जो छूटा, ये वाला लिंकर डीएनए है. समझ रहे हो? सो देखो रेड कलर का टोटल कोर डीएनए, इधर से आया ब्लू लिंकर, इधर से आया ब्लू लिंकर, और ये जब मैंने बोला था टेलीफोन के वायर जैसा फुटबॉल हिस्टोन के साथ जो कॉइल हुआ है, उसको पैक करने वाला ये ग्रीन हिस्टोन का मॉलिक्यूल which is not part of the core, right? So this is a histone which is locking के लिए यूज होगा H1 and it is part of linker, right? तो हमने फॉर्मूला लिखे थे, न्यूक्लियोसोम is equal to octamer plus core DNA plus linker DNA. Octamer contains 4 types of histone, 2 each. Core DNA is wrapped around core histone and linker DNA connects 2 nucleosome bits, right? चलो इसके अब नंबर्स के बारे में देखते हैं. The negatively charged DNA helical DNA is wrapped around a positively charged histone octamer, forming a structure known as nucleosome. Nucleosome core is made up of 2 molecules of each 4 types of histone protein, viz. H2A, H2B, H3, H4. H1 protein binds the DNA thread where it enters, arrives and leaves the nucleosome. Okay, यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे बाइंड करता है, यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे बाइंड करता है. One nucleosome approximately contain, approximately, प्लीज नोट करो, लेकिन हमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. कैलकुलेशन यू कैन रिमेंबर, राइट? सो approximately contain 200 base pair along DNA helix would around it about 146 base pair long segment of DNA present in each nucleosome.
Nucleosomes are the repeating units of chromatin, which are thread-like, stained-colored bodies present in nucleus. These look like beads on string. न्यूक्लियोसोम फाइबर को हमेशा ये शब्द यूज किया जाएगा, bead on strings. When observed under an electron microscope, DNA helix of 200 base pair, BP is base pairs, wrapped around a histone aptamer in 1/3. ये देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये how it is coiled 1/3. Six such nucleosome get coiled. अब आगे का देखो, राइट? ये न्यूक्लियोसोम फाइबर जिसको हम बीड ऑन स्टिंग बोलेंगे, देखो ये एक बीड, ये दूसरा बीड, ये तीसरा बीड. सो दिस इज न्यूक्लियोसोम फाइबर, राइट? अब इसके अंदर ये है कोर का हिस्टोन प्रोटीन. समझ में आ रहा है ना? पर्पसफुली मैंने सेम कलर यूज किया, लाइट येलो कलर, बराबर. अब ये जो है ये वाला, दिस इज न्यूक्लियोसोम फाइबर. इट विल कॉइल इन सच अ वे, ये देखो इसका एक कॉइल है ये, राइट? ये दूसरा कॉइल है, ये तीसरा कॉइल है, राइट? सो these coils are having 6 nucleosome per turn. So यहाँ पे ये 6 nucleosome आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, राइट? और 6. So एक राउंड में 6 आएंगे, ये राउंड में फिर से 6 आएंगे, ये राउंड में फिर से 6 आएंगे. ओके, एक कॉइल में 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे. इस ये कॉइल में भी 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे. तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड फाइबर. दिस क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म अ सोलेनॉइड. स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर डायमीटर. बच्चों ये ध्यान में अब हमको रखना है. अभी तक हमने बहुत गाना गाया, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम. अब हमको ये ध्यान में रखना है, राइट? व्हाट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम फाइबर, व्हाट इज डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड फाइबर. ओके, 30 नैनोमीटर. ओके, एंड क्रोमैटिन. सो ये तीनों के हमको अब डायमीटर भी ध्यान में रखने हैं, which further coil and condenses at metaphysic stage to form chromosome. Max condensation is for chromosome, right? So nucleosome fiber, DNA की width 20 angstrom unit, nucleosome fiber 100 angstrom, right? Then it will be solenoid 30 nanometer. Okay, and further supercoil tend to form loop structure called chromatin fiber, which further coiled and condenses at metaphysic stage to form a chromosome. Shortest thickest structure जो 3000 times packaging बताता है. This packaging of chromatin at higher level needs additional set of protein and those are called non-histone protein. क्लास वर्क में देखो मैंने ग्रीन कलर का non-histone protein की स्टिक बताई थी. It is called NHC. माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमको इस प्रकार के बीड ऑन स्टिंग दिखेंगे, राइट? ये ऑक्टामर, राइट? ये टोटल स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये लिंकर, बराबर. और इसका यूनिट हमने बोला था न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर विल बी 1 यूनिट. ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है? बीड ऑन स्टिंग मैग्नीफाइड. सो दिस इज न्यूक्लियोसोम. ओके, इसका पैकेजिंग देखो, एनसीईआरटी से अच्छी डायग्राम है ये. लिंकर डीएनए वेरिंग इन लेंथ फ्रॉम 8 to 144 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. ओके, ये बदलते रहता है. न्यूक्लियोसोम कोर हैज 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए wrapped as 1/3 turn. यहाँ पे 1/3 चाहिए बच्चों, हाँ? It is 1/3 turn around an octamer. Nucleosome core 146 nucleotide pair of DNA wrapped as 1/3 turns around the octamer of histone. Right? Then chain of nucleosome forming thick fiber. देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है 10 to 11 नैनोमीटर. ओके, राइट? सो देखो ये 6 कॉइल, इसका विड्थ है 300 नैनोमीटर,
राइट. सो मेटाफेजिक, फाइबर और सोलेनॉइड. डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड. सोलेनॉइड का रहेगा 3000. ओके, ये डीएनए का रहेगा. यहाँ पे बी टाइप ऑफ डीएनए की विड्थ रहेगी 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बराबर. न्यूक्लियोसोम फाइबर की 100, यहाँ पे 110 दी है, मैंने अभी 100 बोला था, राइट. एंड सोलेनॉइड की रहेगी 300. क्लियर. सो पैकेजिंग अच्छे से देख लो. Non-histone chromosome proteins. These are additional set of protein that contribute to packaging of chromatin at higher level. सोलेनॉइड के बाद हमको non-histone प्रोटीन का मदद लेना पड़ेगा. Heterochromatin and euchromatin. Heterochromatin is in a eukaryotic cell. Some segments of chromosome during interphase and early prophase remain in condensed state. These regions constitute heterochromatin. Highly coiled, thicker, which will stain dark, is heterochromatin. This term was proposed by scientist का नाम Hex. These regions are localized near centromere. Centromere के आजू बाजू mainly heterochromatin ज़्यादा होगा, and telomeres, and are also interlocated. इसका मतलब है कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रोमियर के पास ज़्यादा होंगे, टेलोमियर के पास ज़्यादा होंगे. It stains strongly and appear dark. Heterochromatin is 2 to 3 times more rich in DNA than euchromatin. इसके पास डीएनए ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा कॉइल होने की वजह से खुल के एमआरएनए नहीं बना सकता. So it is genetically inactive. Euchromatin is a region of chromonema which are in non-condensed state constitute euchromatin. Euchromatin region stains light. Obviously हमने differences लिखे थे, देखो वहाँ पे. Euchromatin is genetically very much active, fast replicating. ये भी point हमने लिखा था. During replication, euchromatin replicate first, earliest phase, and heterochromatin replicate latest phase. Euchromatin is transcriptionally genetically active, while heterochromatin is transcriptionally almost inactive. Transcriptionally मतलब euchromatin mRNA बनाएगा, mRNA प्रोटीन बनाएगा, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर रेगुलेट करेगा. हेट्रोक्रोमेटिन mRNA नहीं बनाएगा तो प्रोटीन बनाने का सवाल ही नहीं उठता, तो कैरेक्टर रेगुलेट करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल होगा. What is the backbone of DNA structure? Name the nitrogen bases. What are nucleosides, nucleotides, and the double helix? Okay, so यहाँ पे टोटल डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमने बायोमोलिक्यूल लेसन में सीखा था, राइट. ये पॉइंट हमको स्टेट बोर्ड के लिए देखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, राइट. सो बायोमोलिक्यूल में मैंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको लिख के दिया था, ओके, वो बायोमोलिक्यूल से सेम पॉइंट यहाँ पे आएंगे. एक हेलिक्स का डायग्राम और केमिकल नेचर का जो डायग्राम है वो हम ध्यान में रखेंगे. अगर 2 मार्क के लिए बोर्ड का क्वेश्चन आता है, so we should be prepared, right?